People, I request Shri Jignesh Mehta to do the honors with the Honorable Chief Minister of Chhattisgarh. We can applaud a little louder. It's a moment of pride for both the states. Thank you. And continuing with the Torrent Group is for the Torrent Limited Pharmaceutical Manufacturing Facility with an investment of with an investment of 200 crore and 200 employment opportunities. We wish good luck. Taking a bold step toward a greener future, Messrs. Onyx 3 Enersol Private Limited, Rajkot, proposes an integrated electrolyzer, green hydrogen, green ammonia, and green steel manufacturing plant, and a remarkable investment of 9,000 crore, generating over 4,000 jobs. I request Shri Divyesh Savalya and Shri Daljit Singh Sandhu to do the exchange with the Honorable Chief Minister of Chhattisgarh. Congratulations and good luck. We have next Mala Creation Private Limited, Surat, investing in the manufacturing of solar cells, 2 gigawatts, with a proposed investment of 700 crore and employment for more than 500 people. We welcome Shri Anil Kumar Kambadia to exchange the letter of intent with Honorable Chief Minister, sir. Congratulations and we wish you good luck. Next we have Sapphire Semicon Private Limited, Ahmedabad, a visionary enterprise driving India's semiconductor and digitalization revolution with a proposed investment of 120 crore and employment potential for 4,000 people. The company is committed to strengthening India's electronic manufacturing ecosystem and fostering digital innovation. Mr. Kumarul Patel. Congratulations and we wish you lots of good luck. And now, adding to this list of distinguished investors, Shalby Multispeciality Hospital, Ahmedabad, that proposes to invest 300 crore in expanding advanced healthcare infrastructure, bringing specialized medical services and employment to many. Mr. Shayan Shah will exchange the letter of agreement with the Honorable Chief Minister of Chhattisgarh, Shri Vishnudev Sai ji. Congratulations to all of you. Thank you. Gentlemen, you can take your seat. Together, these letters of intent represent a combined proposed investment of more than 33,000 crores and over 10,000 plus employment opportunities. A big clap from Gujarat to Chhattisgarh. Thank you. Ladies and gentlemen, we are truly honored to have with us a leader whose vision has redefined Chhattisgarh's growth story. A leader dedicated to empowerment, progress and prosperity for all. माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने विकास, निवेश और विश्वास तीनों में नई ऊंचाइयां हासिल की है। उनकी सोच है सरल नीतियां, सशक्त नागरिक और सशक्त राज्य। Please help me in joining and welcoming the Honorable Chief Minister of Chhattisgarh, Shri Vishnudev Sai ji, to deliver the keynote address. बहुत-बहुत स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी आपका आपके विशेष संबोधन के लिए। आज अहमदाबाद की इस पावन भूमि में आज के इन्वेस्टर कनेक्ट में हमारे छत्तीसगढ़ के CSIDC के चेयरमैन श्री राजीव अग्रवाल जी, हमारे प्रदेश के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह जी,
CII गुजरात के चेयरमैन श्री प्रेमराज कश्यप जी, CII छत्तीसगढ़ के चेयरमैन श्री संजय जैन जी, हमारे प्रदेश के उद्योग सचिव श्री रजत कुमार जी, CM सेक्रेटरी श्री राहुल भगत जी, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ आए सभी अधिकारीगण और गुजरात प्रदेश से आए सभी उद्योगपति भाई और बहनों और प्रेस के मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता और छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम का ननिहाल भी है, माता कौशल्या का मैके भी है, तो प्रभु श्री राम के ननिहाल के तरफ से आप सब लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। और गुजरात में भारत पर्व मना रहे हैं, तो भारत पर्व की भी आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। और गुजरात के मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद, उन्होंने भारत पर्व में शामिल होने के लिए हम लोगों को बुलाया था। और कल हम लोग एकता नगर केवड़िया में थे, जहां पर देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू वहां पर स्थापित है, यूनिटी स्टैचू ऑफ यूनिटी। कल उनको 150वीं जयंती उनका चल रहा है, तो उनको पुष्पांजलि भी किए हैं और बहुत अच्छा लगा, पहली बार वहां पर आना हुआ था। और कल छत्तीसगढ़, दिल्ली और सिक्किम 3 प्रदेश के लोग वहां पर आए हुए थे और एक मिसाल कायम एकता नगर में हो रहा है, पूरा देश वहां पर एकत्रित है। और जिस तरह से हमारे देश में खान पान, बोली, भाषा सब कुछ अलग अलग है, लेकिन वहां पर एक साथ देखकर बड़ा अच्छा लगता है। और आज आप लोगों के बीच में इस इन्वेस्टर कनेक्ट में उपस्थित हैं और आज जिन्होंने भी निवेश प्रस्ताव दिया है, ऐसे सभी उद्योगपतियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बधाई करते हैं और आमंत्रण देते हैं उनको छत्तीसगढ़ जरूर आएं। और जो हमारे प्रदेश की उद्योग नीति है और छत्तीसगढ़ प्रदेश के विषय में हमारे उद्योग सचिव हैं रजत कुमार जी बहुत अच्छा से बताए हैं, हमारे CII के चेयरमैन संजय जैन वो भी अच्छे से बताए हैं और आप सब लोगों को भी मालूम है, कहे कि छत्तीसगढ़ में और हमारे रायपुर में लाखों की संख्या में हमारे गुजराती भाई हैं, तो जरूर वो आते होंगे तो छत्तीसगढ़ के विषय में चर्चा करते होंगे। तो मैं उन सब बातों पर फिर से दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ देश के हृदय स्थल में बीचों बीच में बसा है। और जैसा रजत जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ रायपुर से देश के किसी भी भाग में 100 मिनट में एयर के माध्यम से पहुंच सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। और छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से भरपूर है, वन संपदा से भरपूर है और उद्योग की बहुत वहां पर संभावनाएं हैं। लेकिन एक जो छत्तीसगढ़ के विषय में सोच थी देश के लोगों का कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद है, वहां पर रायपुर में जैसे उतरेंगे गोलीबारी की आवाज आएगी, इस तरह से जो एक लोगों के मन में सोच थी, तो उसके विषय में हम कहना चाहेंगे कि आज की स्थिति में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज वहां पर हमारी सरकार को 22 महीने हुए हैं और 2023 दिसंबर में जब हम लोग सरकार में आए और अगले ही महीना
जनवरी 2024 में आपके ही गुजरात के माटी पुत्र और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी छत्तीसगढ़ आए और नक्सलवाद के विषय में समीक्षा बैठक किए। तब हमको पता चला कि वहां पर नक्सलवाद का 77% नक्सलवाद है छत्तीसगढ़ में, और बाकी 23% छत्तीसगढ़ के चारों तरफ जो नेबरिंग स्टेट हैं 6-7 वहां पर है। तो एक बड़ा चैलेंज था छत्तीसगढ़ के लिए कि इतना रिच स्टेट होते हुए भी नक्सलवाद के कारण वहां पर विकास रुका हुआ था। लेकिन बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी गुजरात के माटी के सपूत हैं, हमारे गृह मंत्री जी भी आपके ही गुजरात के सपूत हैं, और दोनों ने ये ठाना कि 31 मार्च 2023 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और उसके लिए हम लोगों ने रणनीति तैयार की। और आज आप सबको भी मालूम है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हमारे जवान नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ रहे हैं और जो सफलताएं हम लोगों को लगातार मिल रही हैं, बड़े बड़े जो माओवादी हैं सब न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। और हमको तो पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है नक्सलवाद को 31 मार्च 2026 तक समाप्त करने का, उससे पहले ही समाप्त होते हमको तो दिख रहा है। और इसके बाद छत्तीसगढ़ में किसी भी तरह की कोई मतलब डर या भय का बात नहीं रहेगा। और हमारे प्रदेश की उद्योग नीति बहुत अच्छी है। वहां पर खनिज संपदा है, वन संपदा है, सड़क है, बिजली है, पानी है, एयर कनेक्टिविटी है, मैन पावर है। तो आज बहुत सारी बातें हुई हैं। मैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते आप लोगों को आमंत्रण देने आया हूं कि आप सब लोग छत्तीसगढ़ जरूर एक बार आए वहां पर। और जिस तरह से रजत जी ने कहा कि उद्योग धंधे के लिए मतलब पैसा ही नहीं बुद्धि भी चाहिए। बुद्धि ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन गुजराती भाइयों के पास तो दोनों है बुद्धि भी है और पैसा भी दोनों है। तो निश्चित रूप से आप सब लोग छत्तीसगढ़ में आए और हमारी पूरी टीम वहां सदैव आप लोगों के सहयोग के लिए तत्पर रहेगी। हमारे उद्योग विभाग की टीम बहुत अच्छी है और सिंगल विंडो सिस्टम है। एक बार आवेदन लगाने पर कोई झंझट नहीं है, कई दफ्तर के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। और क्या बोलते हैं, हमारी उद्योग नीति इतनी अच्छी है कि अभी 10 महीने ही हुए हैं और 7.5 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव हमारे प्रदेश को मिल भी चुका है और धरातल में कई काम शुरू भी हो गया है। ऐसा नहीं है कि खाली निवेश प्रस्ताव मिला है। और एक व्यक्ति तो ससुराल आए थे रायपुर, लेकिन वो उद्योग लगा के गए उद्योग का पूजा पाठ करा के शिलान्यास करके गए। तो ऐसी उद्योग नीति और ऐसे हमारे मतलब उद्योग विभाग की टीम है जो तत्परता के साथ काम कर रहे हैं। तो किसी भी तरह से भी कोई तकलीफ आप लोगों को नहीं होगी। और बाकी हम तो बैठे ही हैं, किसी तरह से भी आप लोगों को परेशानी की जरूरत नहीं होगी। आप सब लोग जरूर निवेश करने के लिए छत्तीसगढ़ में आए। और जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सोच है 2027 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का, तो सभी प्रदेश की भी जिम्मेदारी है। तो आप सब लोगों के सहयोग से हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करेंगे और विकसित भारत में हम लोग भी सहयोगी बनेंगे। और हमारी नई उद्योग नीति और छत्तीसगढ़ के विषय में सारी बातें हो गई हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और फिर से एक बार मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाते सारे उद्योगपति भाई और बहनों को हम निमंत्रण देने आए हैं कि एक बार जरूर आप सभी लोग छत्तीसगढ़ आए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके शब्दों में प्रेरणा भी है और दिशा भी है।
आपके उद्बोधन ने यह स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ सिर्फ उद्योग को आमंत्रित नहीं करता बल्कि साझेदारी का भरोसा भी देता है। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। To conclude this wonderful event of meaningful dialogue, I now invite Shri Vishwesh Kumar, Managing Director, CSIDC, Government of Chhattisgarh, to deliver the vote of thanks. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का 2 दिवसीय गुजरात दौरा था। सीधे तौर पर उन्होंने निमंत्रण दिया छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए। यहां पर उद्योगपतियों को निमंत्रण देते हुए मुख्यमंत्री नजर आए और उद्योग को लेकर जो प्रदेश तरक्की कर रहा है उसके बारे में भी उन्होंने यहां पर चर्चा की। कई बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई। इन्वेस्टर्स से कनेक्ट करते हुए इन्वेस्टर्स कनेक्ट कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे और प्रदेश में जो है सीधे तौर पर उन्होंने न्योता देते हुए नजर आए।